So as we studied about this connective tissue, that connective tissue for fluid one was divided into blood and lymph. If I talk of this blood जो है हमारा हार्ट में मूव कर रहा होता है. It's moving into the heart, finally reaching through the aorta. Aorta के through move करेगा. When this is moving through the aorta, through the blood capillaries, इसी capillaries के पास you have another capillary running off. When this blood has all the component as in the RBC, it has WBC, it has platelets, it has the plasma, plasma में ions होंगे, plasma में water present होगा, then you have the other molecules जिसको हम nutrients कहेंगे. Some of the enzymes, they may be, moving inside this plasma. But now what happens, कुछ जो इसका material है that will start moving inside this particular capillary, and this capillary will carry the WBC, it will carry some of the protein and the fat molecules. कुछ plasma होगा इसके अंदर, some amount of plasma means क्या आने वाला है, water आने वाला है. So lymph is basically a fluid, and this fluid actually comprises of the plasma, means the water which contains the WBC, it contains the protein, fat molecules. कुछ amount, protein सारा नहीं, कुछ amount. अब ऐसा क्यों हो रहा है? The reason being, हमारा जो blood है, it cannot carry much thing. वरना इस कैपिलरी या आर्टरीज के अंदर क्या हो सकता है, that could inhibit the flow of the liquid substances. तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, that extra things they are transferred to this particular capillary, और ये कैपिलरी मेरी क्या कहलाएगी, lymphatic capillary. Now this lymphatic capillary is always associated with a particular cell. हमेशा आसपास में सेल या फिर ब्लड कैपिलरी होगी. सेल भी क्या करेगा, अपनी जितनी भी चीजें होंगी एक्स्ट्रा वो इसको दे देगा. So what is lymph? Lymph is a fluid or a plasma-like substance, the pale yellow-colored substance, you can say. This pale yellow-colored substance which has the which has the WBC, protein, fat molecules. RBC बिल्कुल नहीं होते, so they are not red in color. This is pale yellow in color or whitish in color. इसका main काम क्या होगा? To maintain the interstitial content या फिर interstitial amount of the substance, उसको ये क्या करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा. इंटरस्टिशियल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसके बीच में और इसके बीच में एक ऑस्मोलैरिटी को क्या करके रखेगा, मेंटेन. ऑस्मोलैरिटी विल बी मेंटेन हियर. अगर ब्लड में ज्यादा है तो लिम्फ को दे दो, अगर सेल में ज्यादा है तो लिम्फ को दे दो. अब लिम्फ क्या कर रहा है, इन दोनों की जो आयनिक कंटेंट्स है उनको बैलेंस बना के रखता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो इसके अंदर कौन से मेरे सेल्स है, WBC. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस WBC? दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी. WBC क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी. तो थर्ड फंक्शन जो है वो इस लिम्फ का क्या होगा, टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी एज इट इज अ मेजर कैरियर ऑफ द WBC. ब्लड तो है ही है, साथ में WBC हमारे इसमें भी प्रेजेंट है. देन यू कैन सी some of the fat molecules they are also going, and for that this molecule, the fat molecule carrier जो है lacteal, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, lacteals are the lymphatic capillaries which are present in the small intestine. and ये small intestine में क्या करेंगे, जहाँ पे जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड होगा वो कौन है, किसके अंदर जाते हैं, they go into the blood capillary, while the fat molecules
they always go into the lacteal. So lacteal helps in the absorption of the fat molecules. तो जहां जहां पे भी फैट मॉलिक्यूल्स को पहुंचाना है वहां पे कौन काम करने वाला है? This lymphatic capillary is going to work. So first is the interstitial, fluid maintenance जो है वो काम कौन कर रहा है? This lymphatic capillary. Osmotic balance between the cell और the blood capillaries कौन maintain करता है? This lymph. Immunity provide करता है because of the presence of the fat, and the lacteal, which is the lymphatic capillary, helps in the absorption of the fat molecules. This lymphatic capillary अगर हम देखें तो ये parallelly run करेगी, जहां जहां पे भी blood जाएगा वहां हर सेल के पास ये कैपिलरी जो है वो साथ में जाएगी, and finally it will drain all its content to the, यहाँ पे जो मेरा वेन्स है, वेना कावा जो आएगी, फाइनली ये सारी चीजें किसको दे देगी? वेन्स को, एंड इट विल गेट फिर से ये जो भी मेरे पास WBC प्रोटीन दे दिया, इट विल गो इनसाइड, इट सर्कुलेटेड, वापस आएगा थ्रू द वेन एंड विल बी ट्रांसफर्ड अगेन. तो ये सारी साइकिल बार बार इस लिम्फेटिक कैपिलरी के साथ भी चलती रहेगी, लिम्फ के साथ भी चलती रहेगी. नाउ सिंस इट इज कनेक्टिंग ईच सेल, जहां जहां पे ब्लड जा रहा है वहां पे जा रहा है, इसीलिए इसको किस में इंक्लूड करा है? वी हैव इंक्लूडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू. एंड since it is fluid in nature because of the presence of the water or the other contents, that is why what we say it as a nature known as the fluid nature. For the solid matrix, if I say I have the rigid matrix, I can say I have the two things. One is bone and another one is cartilage. One is bone and another is the cartilage. If I talk of a bone जो है, if we see, हमें एक बहुत क्लियर पिक्चर लग जाता है कि बोन है तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, and which is more of having the calcium and phosphate. लेकिन जब हम कार्टिलेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेग्युलर टाइप ऑफ क्या है? मैट्रिक्स है, जिसके अंदर कैल्शियम भी होगा, जिसमें फॉस्फेट भी होंगे, जिसमें आयंस भी होंगे. जहां बोन कंप्लीटली रिजिड है मेरे लिए, ये कार्टिलेज इट इज नॉट दैट मच यू कैन से रिजिड एंड नॉट दैट मच यू कैन से फ्लूइड इन नेचर. सो ये मेरे लिए एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की तरह क्या करेगा? वर्कआउट करेगा. Where bone is rigid in nature, the cartilage is flexible in nature. If I talk of bone, bone is made up of the cells known as osteocytes. जो cells होते हैं इसके, the cells are termed as osteocytes. And similarly, जो cartilage के cells होंगे, that are known as chondrocytes. We have heard it in the name as in, अगर एनिमल किंगडम में देखें तो एनिमल किंगडम में the fishes liver of the Pisces was divided into the chondrichthyes and osteichthyes. So जो osteichthyes थी वो that were bony fishes. So here osteocyte means bone से relate हो गया, and chondrocyte is related to the cartilage. जो cells आपके bones बनाते हैं that are termed as osteoblasts. The cells which help in forming the bones, they are termed as osteoblasts, and the one which form the chondrocytes, they are chondroblasts. Okay, so osteocytes formed by the osteoblasts, chondrocytes formed by the chondroblast cells. Imagine क्या करना है कि अगर आप जा रहे हो, if you are moving somewhere, ठीक है, और आपने एक टॉफी खरीदी, तो एक टॉफी का कैसे स्ट्रक्चर होता है? कुछ इस तरीके से बना हो गया, टॉफी समथिंग लाइक दिस. तो आपका एक ऑस्टियोसाइट जो है उसका कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है. इट इज अ काइंड ऑफ अ स्टार शेप स्ट्रक्चर, और यू कैन से अ स्टीलेट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. जो ऑस्टियोसाइट है वो एक स्टीलेट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर है, विद अ न्यूक्लियस प्रेजेंट, विद अ ऑर्गेनाइज प्रेजेंट, सब कुछ मिलेगा. लेकिन जो कॉन्ड्रोसाइट्स है या कॉन्ड्रोब्लास्ट है वो एक से ज्यादा, ऑस्टियोसाइट हमेशा एक ही होगा,
मतलब ये अकेला सेल अपने आप को दूसरे सेल्स के साथ क्या करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है। लेकिन जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो जरा पेयर में, they always work in 2, 3 या 4 in number। जैसे आप कभी you go to a कीर्तन और समथिंग, तो आपको एक प्रसाद मिलता है ना, लड्डू का प्रसाद मिलता है, यू हैव दैट 4 लड्डूस प्लेस्ड इन वन ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्ड्रोसाइट्स प्लेस्ड होते हैं। Here the chondrocytes, they are almost circular in nature with the ये एक chondrocyte है, और ये chondrocyte जो है ये covered है। जैसे आपका एक रसगुल्ले का डब्बा कैसे होता है, अलग अलग रसगुल्ले प्लेस है, जैसे वो रसगुल्ले हैं वैसे ही आपके chondrocytes है। लेकिन if I talk of an individual thing, एक मिठाई, एक टॉफी की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो आई टॉक ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दैट इज दी बोन, जो मेरा एक ऑस्टियोसाइट बन जाएगा। सो फॉर कॉन्ड्रोब्लास्ट मेरा एक से ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट को कॉन्स्टिट्यूट करता है, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट में इफ आई सी, आई विल फाइंड ओनली वन ऑस्टियोसाइट। ये ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स जो है they go on increasing but again for a particular period of time, उसके बाद में क्या हो जाएंगे, they will stop forming। ऐसे ही हमारे कॉन्ड्रोसाइट द कार्टिलेज सेल्स हैं जो एक टाइम तक they what they do, they go on increase। So here you can see that these osteocytes, they are actually arranged। ठीक है, ये किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, दे आर अरेंज इन एन कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में ये एक एक ऑस्टियोसाइट है जो आपका एक के साथ एक सर्कुलर फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। एंड दे आर अरेंज इनसाइड अ पर्टिकुलर, एक कैनाल है मेरे पास, एक कैनाल के अंदर दे आर अरेंज लाइक दिस। तो मेरी हर एक फिंगर जो है, हर एक रिंग यू कैन से इज माय ऑस्टियोसाइट, एंड दीज ऑस्टियोसाइट्स दे आर कनेक्टिंग विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। और ये वाले जो स्ट्रक्चर यू कैन सी, ये सारी प्रोसेसेस है, और ये प्रोसेसेस को अब हम बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज एन कैनालिक्यूलाई। क्या बोलेंगे हम, वी कॉल इट एज एन कैनालिक्यूलाई। एंड ये जो कैनालिक्यूलाइज होती हैं, दे कनेक्ट, यानी कि अगर ये एक सेल है, इफ दिस इज अ सेल, दिस इज, ये इसकी कैनालिक्यूलाइज हो जाएंगे। नाउ दीज कैनालिक्यूलाइज, दे आर पासिंग देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर सेल। तो एक सर्कल में अरेंज हो गया मेरा ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बीच में आ गया मेरा हेवर्शियन कैनाल, इसके अराउंड में आई हैव दिस पर्टिकुलर सेल्स, ये अरेंज एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में गोल घूमते गए, एंड दे आर मोर देन वन इन नंबर। एक ये पूरा जो सिस्टम है मेरा, दिस होल सिस्टम विल बी नोन एज दी हेवर्शियन सिस्टम। इस पूरे के पूरे सिस्टम को व्हाट आई विल से, आई कॉल इट एज एन हेवर्शियन सिस्टम। और ये हेवर्शियन सिस्टम जो है, दिस हेवर्शियन सिस्टम इज एक्चुअली गोइंग टू कनेक्ट दी ईच एंड एवरी सेल, यू कैन से। अब ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इफ आई से ये एक हेवर्शियन कैनाल है, और इस हेवर्शियन कैनाल में ये मेरे सारे क्या हैं, दीज ऑल आर माय ऑस्टियोसाइट्स। और ये ऑस्टियोसाइट्स जो है ये आपस में कनेक्शन शो करते जा रहे हैं, देन अगेन एंड अगेन। तो ये मेरा एक हेवर्शियन सिस्टम हो गया। सिमिलरली आई विल मेक इट हियर, इस तरीके से इसके खुद के प्रोसेसेस होंगे। अगेन द थर्ड वन इफ आई से, वो यहाँ पे आपका प्रेजेंट है, और ये सारा का सारा किसके अंदर है, दिस इज इनसाइड दिस बोन। और ये आपस में भी दे ऑल आर कनेक्टेड। एंड ये अगर आपका हेवर्शियन कैनाल है, दिस इज द हेवर्शियन कैनाल, दिस इज द ऑस्टियोसाइट। जो इसकी प्रोसेसेस हैं, these are known as the canaliculi। ये पूरा कंटिन्यूअस है कैनालिक्यूलाई, एंड ये पूरा जो है दिस इज नोन एज हेवर्शियन सिस्टम। दिस इज द हेवर्शियन सिस्टम, एंड ये जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दिस इज नोन एज द वॉकमैन्स कैनाल।
दिस इज दी वोकमैन्स कैनाल, जो दो हेवर्शियन सिस्टम को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। हमें हेवर्शियन कैनाल के अंदर है क्या? द हेवर्शियन कैनाल एक्चुअली कंप्राइजेस ऑफ द ब्लड वेसल। बोन बड़ी भी तो हो रही है, बच्चे थे छोटी छोटी सी बोन्स थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए बोन का साइज भी बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पे इनसाइड दिस हेवर्शियन कैनाल, इफ आई टॉक ऑफ, आई हैव द नर्व्स, आई हैव द ब्लड वेसल्स, जो इन सेल्स को क्या सप्लाई करेंगी, they will be supplying nutrition and also helping in giving them the oxygen, respiration भी होगी। so that is all the things that जो आपका इसके अंदर आएगा। now along with that if I say कि हर एक जो मेरा osteocyte है, this is my osteocyte, ये osteocyte जो है this is covered in a box। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज द कॉन्ड्रो ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये जो स्पेस बची है, दिस स्पेस इज नोन एज लैक्यूने, आई विल कॉल इट एज इन लैक्यूने। So this is all the structure of the bone which is having the major thing as a Haversian system. Here in case of the cartilage you can see the cells which I have is known as chondrocytes. तो ये एक एक कॉन्ड्रोसाइट है जो इसका किसके अंदर प्रेजेंट है, they are present in the chondroblast, जो फर्दर आपके क्या हो जाएंगे, they may be 1 in number, 2 in number, and it has some of the elastic fibers. along with that अगर हम देखें तो कुछ हमारे जो कार्टिलेजेस होते हैं, they are having, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर भी हमें दिख सकता है। Here you can see the single cartilage cells, the chondrocytes, they are arranged over here, and ये जितना भी मेरा arrangement है, if you can see over here, ये chondrocytes जो है मेरे, these ये fibers के साथ जितना भी मेरा अरेंजमेंट है, जितना नीचे होगा, ये यू कैन सी जितना डाउन है उतने नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ज्यादा है। एंड देन द ट्रांजिशन जोन या फिर जो टेंडेंशियल जोन है, उसके अंदर जो नंबर जो होता जा रहा है वो कंपैरेटिवली क्या होता जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। एंड व्हाटएवर द सेल्स ऑफ दिस कॉन्ड्रोसाइट्स आर गोइंग टू फॉर्म, ये मेरा कार्टिलेज क्या करने वाला है, ये इलास्टिक फाइबर इसमें क्या बताना चाहते हैं कि मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ। That flexibility of the cell is actually done by this particular chondrocyte thing। और ये इलास्टिक फाइबर्स, ये इलास्टिक फाइबर्स ना होते तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर यू कैन से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ना लाता। नाउ इफ आई वांट टू शो यू एज इन कि मेरा ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है वो किस तरीके से होने वाला है, इस अरेंजमेंट में आई विल से कि कोई भी सेल को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं दे आर गोइंग टू अरेंज, ये आपका कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो आपकी कॉन्ड्रोब्लास्ट में प्रेजेंट है। यहाँ पे आपने एक एक देखा, अब डिपेंड करेगा मेरा कार्टिलेज जो है, दिस कार्टिलेज इज ऑफ 3 टाइप्स। एक मेरा इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक है, एक मेरा हाइलिन कार्टिलेज है, एक मेरा डेंस कार्टिलेज है। There are 3 types of cartilage, the elastic one, the hyaline one and the dense one। इन तीनों को अगर मैं देखूं, the hyaline और ये हमारे जितने भी कार्टिलेज है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द येलो इलास्टिक फाइबर एंड दी व्हाइट कोलेजन फाइबर, हम इसको अरेंज करते हैं। डेंस में व्हाइट कोलेजन ज्यादा होगा, इलास्टिक में जो मेरा येलो इलास्टिक है वो ज्यादा होगा। एंड हाइलिन विल बी हैविंग बोथ दी स्ट्रक्चर्स, दैट मींस दी इलास्टिक भी है और हमारा व्हाइट कोलेजन। जो हमारा नोज है, नोज की टिप है, जो ईयर है, ठीक है, और जो मेरा ट्रैकियल रिंग होती